میرے محترم دوستو، آج 11 ربیع الاول ہے اور کل 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے اس جمعہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالہ سے چند ایک معروضات آپ کے حضور گوش گزار کروں گا۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور امام الانبیاء کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب اپنے پورے بنو ہاشم اور بنو قریش کے اندر ایک معتبر انسان تھے، بہت ہی معزز انسان تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، اور سارے قریش کے اندر ان کے فیصلے کو مانا جاتا تھا۔ دائیں بائیں جتنے بھی قبائل تھے، ان قبائل کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، اور عبد المطلب ان کے معاملات میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا تھے، وہ نہایت ہی شریف النفس انسان تھے، ان کے اخلاق بھی بہت عالی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد المطلب نہایت ہی سخی انسان تھے، سخاوت بھی کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے زمانہ میں اہل مکہ پر قحط آ گیا، پانی کی بڑی قلت تھی، لوگوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ ایک ہی کنواں تھا جو قصی بن کلاب نے، جو حضور کے نسب کے اندر ان کے دادا پردادا نے اس کنویں کو کھدوایا تھا، لیکن اس کا پانی بھی میٹھا نہیں تھا، کھارا پانی تھا، اور اس ایک کنویں سے پورے مکہ والوں کی گزر و بسر نہیں ہو رہی تھی، ان کی ضرورت اس ایک کنویں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے اس بارے میں کہ کیا کیا جائے۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں کسی نے بتایا کہ عبد المطلب فلاں جگہ بیت اللہ کے قریب فلاں جگہ ایک کنواں ہے، وہاں آپ کھدائی کریں اور اس کنویں کو اللہ جاری کر دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھنے کے بعد اس جگہ جہاں آج مائے زمزم ہے، زمزم کا جو کنواں ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے عطا کیا تھا، اور پھر یہ کسی زمانے کے اندر بند ہو چکا تھا۔ بیت اللہ اور مکہ کے اندر جب ایک سیلاب آیا، اس سیلاب کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا۔ اب کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کوئی کنواں بھی کبھی تھا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، خواب دیکھتے ہی جب صبح اٹھے اور اس کنویں کو کھودنا شروع کیا، جتنے بھی سرداران مکہ تھے انہوں نے مخالفت کی عبد المطلب کی کہ یہاں ایسا کوئی کنواں وغیرہ نہیں ہے اور یہاں آپ کنواں نہیں کھود سکتے۔ سب کی مخالفت کے باوجود عبد المطلب نے دن رات محنت کی اور انہوں نے کنواں کھودا۔ بہرحال اس کنویں کو کھودتے ہوئے ایک دن تھکے ہوئے تھے، اور مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ عبد المطلب کی مخالفت بھی بہت کرتے تھے۔ جو سارا دن وہ کام کرتے، تھوڑی سی کھدائی ہوتی، رات کو جب آتے گھر، اگلی صبح جب جاتے تو وہ ساری مٹی پھر کنویں کے اندر لوگ ڈال دیتے، یعنی کسی بھی طرح عبد المطلب کو کنواں کھودنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن عبد المطلب دن کو دوپہر کے وقت کنواں کھود رہے تھے، اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو نے میرے گھر کے اندر، یعنی تو نے مجھے اگر 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا، اسے بیت اللہ میں ذبح کروں گا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جب 10 بیٹے پورے ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آ گئی، منت یاد آ گئی کہ میں نے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے،
अब कौन से बेटे को ज़बा करें? अब्दुल मुत्तलिब इस सोचो विचार में पड़े हुए थे। उनका दिल किया कि मैं सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला जो इमामुल अंबिया के वालिद थे कि मैं उनको ज़बा करूं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इतने शरीफ नफ्स थे, इतने वजीह थे, इतने खूबसूरत थे, उनके अखलाक इतने आली थे कि सारे मक्के के लोग उनकी पाकदामनी की, उनकी इफ़्फ़त की गवाही दिया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इरादा किया कि मैं अब्दुल्ला को ज़बा करूं तो मक्के के तमाम सरदारान खड़े हो गए। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ये हम तुम्हें करने नहीं देंगे, हम अब्दुल्ला को ज़बा नहीं होने देंगे, हम जो हो सका हमसे ये करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आपसे ये काम हम नहीं होने देंगे कि आप अब्दुल्ला को ज़बा करो। सारे लोग खड़े हो गए। हां भाई अब क्या किया जाए? लोगों ने मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब आप अब्दुल्ला की जगह जानवर ज़बा कर दें। क्या कर दें? जानवर ज़बा कर दें। अब्दुल मुत्तलिब ने इस मशवरे को माना और कुर्रा डाला। कहा कि मैं कुर्रा डालूंगा, अगर कुर्रा में अब्दुल्ला का नाम आ गया तो मैं अब्दुल्ला को ही ज़बा करूंगा, इसलिए कि मैंने ये नजर मानी थी। और अगर ऊंटों का नाम निकल आया मैं ऊंट ज़बा करूंगा। चनाचे सारा मक्का इकट्ठा हो गया, सारे सरदारान कबीले के लोग जमा हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्रा डाला। एक मरतबा जब पर्ची को उठाया, उस तीर को उठाया तो उस पर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। अब लोगों ने कहा नहीं भाई हम ज़बा नहीं करने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई मैं सरदार हूं, मैं जो चाहूं फैसला करूं। तो लोगों ने कहा कि हजरत साहब आप भी सरदार हैं, लेकिन हम भी सरदार हैं, हम भी कोई रोड पर फिरने वाले वेले लोग नहीं हैं, हम भी अपने अपने कबीलों के सरदार हैं, हम आपको अब्दुल्ला को ज़बा नहीं करने देंगे। दोबारा कुर्रा डालो। दोबारा जब फिर कुर्रा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया। अब इसके बदले में हजरत अब्दुल्ला के बदले में 10 ऊंटों को लाया गया कि हजरत अब्दुल्ला के बदले में 10 ऊंट ज़बा किए जाएंगे। तीसरी मरतबा फिर कुर्रा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया, फिर 10 ऊंट और खड़े कर दिए। यहां तक कि 10 मरतबा कुर्रा डाला, 10वीं मरतबा हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट खड़े कर दिए। 100 ऊंट हजरत अब्दुल्ला के बदले में अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बा करना चाहा। जब 10 मरतबा ऐसा हो गया, 100 ऊंट आ गए मैदान में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तस्कीन नहीं हुई। कहा कि आखिरी मरतबा, एक आखिरी मरतबा मैं कुर्रा डालता हूं। जब आखिरी 11वीं मरतबा कुर्रा डाला तो उसमें ऊंटों का नाम निकल आया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने यूं हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट ज़बा किए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूं, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूं। एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीहुल्लाह थे और दूसरे मेरे वालिद अब्दुल्ला कि इनके लिए भी 100 ऊंट ज़बा किए गए। इनको भी ज़बा करने का इरादा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे वालिद को बचा लिया जैसे हजरत इस्माइल को बचा लिया। तो मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और यूं ही एक मरतबा मुल्क के शाम गए तिजारत की गरज से। वहां रास्ते में किसी जगह एक काहन जो नजूमी आदमी था उससे मुलाकात हो गई। उस दौर के अंदर ये नजूमी लोगों की बड़ी मार्केट थी। लोग उनको बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा करते थे और लोग उनके पास जाकर बैठा भी करते थे और इसको अपने लिए एजाज समझा करते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बाकी साथियों के साथ उस काहन के पास बैठ गए। काहन ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूं, यानी मैं तेरा मुआयना करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कर लो भाई। उसने जब अब्दुल मुत्तलिब को करीब से देखा और देखकर कहने लगा कि मेरा इल्म ये कहता है, मुझे यूं नजर आ रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब तेरे एक हाथ में सल्तनत है और तेरे एक हाथ में नबुव्वत है, लेकिन ये सल्तनत और नबुव्वत तुझे मिलेगी कबीला बनी ज़हरा से जो मदीने में है। जब तेरी रिश्तेदारी कबीला बनु ज़हरा से होगी तो अल्लाह तुझे नबुव्वत भी देगा, तेरी नस्ल में सल्तनत को भी अल्लाह जारी करेगा। अब्दुल मुत्तलिब बड़े मुतासिर हुए। जब उस सफर से वापस आए, एक दिन बैठे हुए उन्होंने इरादा किया कि यार मैं
अब अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी करूं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं मुख्तसर करता हुआ आगे चल रहा हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा किया कि मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी करूं। रवायात मुख्तलिफ हैं अहले सीयर के नजदीक कि अब्दुल मुत्तलिब ने कबीला बनु ज़हरा, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल है, मदीने के अंदर यह कबीला बनु ज़हरा था। इस कबीला बनु ज़हरा के अंदर अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ते का पैगाम भेजा। एक कौल यह है कि एक ही मजलिस में अब्दुल मुत्तलिब ने भी दूसरी शादी की उसी कबीला बनु ज़हरा से, और हजरत अब्दुल्ला की शादी भी उसी कबीला बनु ज़हरा से करवाई। हालांकि अरब के जितने उस वक्त बाकी कबाइल थे, कुरैश के लोग, बनु हाशिम के लोग, कबीला बनी मखजूम के लोग थे, और बहुत सारे कबाइल थे, वो सारे के सारे कबाइल के लोग हजरत अब्दुल्ला को अपनी बेटियां देना चाहते थे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कबीला बनु ज़हरा का इंतखाब किया, और उसकी वजह भी उस पीछे काहन का वो मशवरा था जो उसने अब्दुल मुत्तलिब को दिया था। चूंकि उलमा ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में हमेशा उनकी पेशानी से नूरे नबुव्वत चमका करता था, इसलिए हर कबीले के लोग ये चाहते थे कि हमारी बेटी अब्दुल्ला के घर में जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कबीला बनु ज़हरा का इंतखाब किया। यूं हजरत अब्दुल्ला जो मेरे नबी के वालिद हैं, उनका निकाह हो गया कबीला बनु ज़हरा की एक बेटी हजरत आमना सलामुल्लाहि अलैहा के साथ। हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना का निकाह हो गया। इस निकाह पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेहतरीन दावत की, पूरे मक्के के लोगों की दावत की, उनको खूब खाना खिलाया। जो कुछ उस वक्त में जो पुरतकल्लुफ खाना खिलाया जा सकता था, वो सारी की सारी दावत अब्दुल मुत्तलिब ने की, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे इन अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत भी थी। यूं हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना का निकाह हो गया। अब निकाह के नतीजा में जब उनकी रुखसती हुई और उनको लाया गया हजरत अब्दुल्ला के घर में, अभी 2-3 महीने ही, या बाज रवायात के अंदर आता है कि तकरीबन 4-5 महीने ये दोनों हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमीना एक साथ रहे। 4-5 महीनों के बाद एक दिन हजरत अब्दुल्ला तिजारत की गरज से मुल्क शाम का उन्होंने इरादा किया, क्योंकि मक्का के लोगों को मुल्क शाम ही करीब पड़ता था। इनका जितना भी कारोबारी सिलसिला था, तिजारत थी, वो मुल्क शाम के साथ ही थी। जिसने भी कोई चीज बेचनी होती थी, खरीदनी होती थी, वो मुल्क शाम ही जाया करता था। तो मुल्क शाम चले गए। जब वापस आए, मदीने के करीब थे, वापसी पर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए, सख्त बीमार हुए, उनको शदीद दर्जे का बुखार हुआ। जब मदीना के करीब से यह काफिला गुजर रहा था वापसी के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला ने काफिले वालों को कहा, भाई मैं सख्त बीमार हूं, मैं आगे नहीं जा सकता, तो मैं अपने ननियाल में, कबीला बनु नज्जार हजरत अब्दुल्ला का ननियाल था, कहा कि मैं इधर मदीने में अपने ननियाल जाता हूं और यहीं रहूंगा, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं मक्के आ जाऊंगा। जब ये काफिला मक्के में पहुंचा, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, भाई मेरा बेटा अब्दुल्ला कहां है, वो नजर नहीं आ रहा। तो लोगों ने बताया कि वो मदीने में अपने ननियाल में रह गए, क्योंकि बीमार थे, उनको शदीद बुखार था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 2 बेटों को जल्दी दौड़ाया कि जाओ सवारियां लो और मदीना पहुंचो और अब्दुल्ला को लेकर मक्के आओ। जब ये दोनों भाई मदीना में पहुंचे तो वहां पहुंचकर इन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वफात पा चुके हैं। उनकी तजहीज और तकफीन हुई। दोनों भाई वापस आया कर अब्दुल मुत्तलिब को बताया कि अब्दुल्ला वफात पा चुके हैं, और बाद रवायत में आता है कि इन भाइयों के पहुंचने से पहले ही वफात पा गए, और बाज ने लिखा कि जब ये पहुंचे तो उस वक्त वो वफात पा गए। तो दोनों भाइयों ने, पूरे खानदान ननियाल के लोगों ने उनकी तजहीज और तकफीन की। यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल ही अल्लाह के रसूल के वालिद दुनिया से रहलत फरमा गए। और जब ये खबर हजरत आमीना को मिली, जिनकी शादी हुए भी कुछ महीने, 4-5 महीने गुजरे थे, हजरत आमीना बड़ी गमगीन थी, बड़ी ही उदास थी, बड़ी परेशान थी। जाहिर है दुनिया की कोई आम औरत भी होती, उसके लिए परेशानी की बात है ना, कभी 2-4 महीने
اپنے شوہر کے ساتھ رہے پھر شوہر کا انتقال ہو جائے، بڑی غم کی خبر ہے۔ تو حضرت آمینہ بڑی غمگین رہتی تھی، لیکن جب ان کو محسوس ہونے لگا کہ ان کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہے، یعنی وہ حاملہ ہیں، تو ان کا وہ غم، ان کا وہ فراق، اس میں کمی آ گئی، چونکہ اب ان کو ایک اولاد کی امید لگ گئی، اور اولاد بھی بہت بڑی رب کی ایک نعمت ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اگر اولاد فرما بردار ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ البتہ اگر اولاد نافرمان ہو تو انسان کے لیے دنیا میں یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے، دنیا میں کسی جہنم سے کم نہیں ہے اگر اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو۔ بہرحال حضرت آمینہ فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے اور مجھے اس کی خوشی تھی، اور ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں ایک دن سوئی ہوئی تھی اور خواب میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ اے آمینہ تیرے بطن کے اندر جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تیرے بطن میں جو بچہ ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا ہے وہ دونوں جہاں کا سردار ہے، اس کو دونوں جہاں کی اللہ نے عزتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ بڑا باعزت بچہ ہے یہ، لہذا بڑی احتیاط کرنی ہے، آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اس کا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء جب میرے بطن میں تھے تو جو عورتوں کو عموماً تکلیف ہوتی ہے مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں تھی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت بھی قریب آ گیا، اس وقت میں بھی مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بھی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اس دوران جب امام الانبیاء میرے بطن میں تھے، اگر میں کسی راستے پر بھی چلتی اور اس راستے میں اگر دھوپ ہوتی تو اس راستے کے جتنے بھی درخت تھے وہ جھک کر میرے اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے قریب ایک کنواں تھا جہاں سے پورے محلے کی عورتیں پانی بھرا کرتی تھی، اور جب میرے پیٹ میں امام الانبیاء تھے تو میں جب کبھی پانی بھرنے کے لیے جاتی اور پانی اگر نیچے ہوتا تو پانی مجھے دیکھ کر فوراً اوپر آ جایا کرتا تھا، مجھے پانی بھرنے کے لیے جھکنا بھی نہیں پڑتا تھا، یہ کیفیت تھی میری۔ اور کہتی ہیں کہ میں بالکل اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کرتی تھی اور بالکل بے بوجھ سمجھتی تھی اپنے آپ کو، اور یہی وجہ تھی کہ جب میں کنویں پر جاتی پانی اوپر آ جاتا، یہ سارا ماجرا محلے کی باقی عورتیں بھی دیکھتی، تو جب کبھی وہ پانی کے لیے آتی اس کنویں سے بھرنے کے لیے اور وہاں میں موجود نہ ہوتی تو وہ مجھے بلاتی کہ آمنہ آؤ کنویں پر آؤ، اور اگر تم نے پانی نہیں بھی بھرنا ہے ایویں اس کنویں کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تو اس کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہے پانی اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت آمینہ جاتی، محلے کی ساری عورتیں یوں پانی بھر دیا کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے یہ سارے حالات تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام میرے بطن میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، ولادت سے قبل میں ایک دن سوئی ہوئی تھی تو میں نے ایک نور دیکھا، اور اس نور کے اندر میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا، میں نے اس نور کے اندر فلسطین کے لوگوں کو اپنے شہروں میں چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب عین ولادت کا وقت تھا تو حضرت آمینہ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں تھی، اور حضرت آمینہ کے ساتھ جو اس وقت موجود داعیہ تھی حضرت شفا بنت عمر، وہ بھی حضرت آمینہ کے بالکل قریب تھی۔ حضرت شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ ہم سارے منتظر تھے کہ بچہ ان قریب پیدا ہونے کو ہے، ہم نے اپنی طرف سے ساری کی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ مطلب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، بچے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے داعیہ ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں فوراً، اور بچے کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کے جسم پر جو کچھ کوئی گند بند لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شفا بنت عمر فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا
तो हम भी आम दस्तूर के मुताबिक अपनी सारी तैयारी करके बैठे हुए थे, इंतजार में थे। इसी दौरान 12 रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का वक्त था, और सुबह सादिक के वक्त यानी तुलूए फजर से थोड़ी देर कबल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। हुजूर दुनिया में आ गए। हजरत शिफा बिनते अमर फरमाती हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। मैं देख रही थी कि इमामुल अंबिया हुजूर इस कदर साफ और सुथरे थे, ऐसे लग रहा था कि अभी किसी बच्चे को किसी ने नहला धोला कर रखा हो। इमामुल अंबिया के जिस्म पर मां की पेट की कोई भी चीज नहीं थी, कोई गंदी चीज नहीं थी। इमामुल अंबिया की आंखें इस कदर कुदरती थीं। हजरत शिफा बिनते अमर फरमाती हैं कि मैं इरादा कर रही थी, हमारे यहां बच्चे को पैदाइश के वक्त उसकी आंखों में सुरमा लगाया जाता है, मैंने वो भी तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन जब मैंने इमामुल अंबिया को देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को देखा, तो मुझे यूं लगा कि इस बच्चे को किसी ने पहले से सुरमा लगाया हुआ है। हुजूर की आंखें सुरमगी आंखें थीं। देखकर यूं लगता था कि हुजूर ने सुरमा लगाया है, लेकिन वो कुदरती अल्लाह ने अपने नबी की आंखों को सुरमगी रखा था। हुजूर लगाते थे सुरमा, कभी कभी लगाते थे, लेकिन हुजूर की आंखें कुदरती ऐसे ही थी, कुशादा आंखें थी हुजूर की। हजरत शिफा बिनते अमर फरमाती हैं, मैंने हजरत आमीना से कहा कि आमीना ऐसा बच्चा तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। और अगला मरहला कि बच्चे को पैदाइश के बाद खतना किया जाता है। हजरत शिफा बिनते अमर ये फरमाती है कि जब मैंने बच्चे को करीब से देखा, जब उसका मुआयना किया, तो मैंने देखा कि ये बच्चा पहले से ही खतना शुदा है। हुजूर जब दुनिया में आए इस हालत में आए कि हुजूर खतना शुदा थे, हुजूर को खतना नहीं किया गया। अल्लाह ने अपने नबी का पैदाइश से कबल ही फरिश्तों के जरिए हुजूर का खतना पहले से किया हुआ था, हुजूर को खतने की भी जरूरत नहीं थी। बहरहाल सारे मक्के के लोग इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपकी पैदाइश के मुंतजर थे। जिस तरह वो किसी शायर ने कहा ना कि हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का रंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसान को जीने का शऊर आया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, आपकी मदह हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हम सभी मोमिनों की मां, हमारी ईमानी कुरानी रूहानी मां हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा इमामुल अंबिया की तारीफ करते हुए फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल्लाह फाक़ शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा फ़इन्न शम्सा ततलउ बअदल फज्र व शम्सी तालिउन बअदल इशा। सारी दुनिया के लोगों, एक आसमान का सूरज है, एक जमीन का सूरज है, और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, आला है, अरफा है, इसलिए कि दुनिया का सूरज फजर के बाद तुलू होता है, और मेरा सूरज यानी इमामुल अंबिया, मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। हजरत आयशा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है, ऐसा क्यों कहा? रवायात में आता है, एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा अपने घर के अंदर थी, रात का वक्त था, जो दिया जल रहा था वो बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे हाथ से मैं कोई काम कर रही थी, सिलाई कर रही थी, मेरी सुई जमीन पर गिर गई, अंधेरा था, सुई नहीं मिल रही थी। इतने में इमामुल अंबिया घर में तशरीफ लाए। हुजूर ने पूछा कि आयशा क्या कर रही हो? मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी सुई हाथ से गिर गई, अब वो मिल नहीं रही, अंधेरा है, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूं। इमामुल अंबिया मेरे इस बात पर मुस्कुराए। हुजूर के मुस्कुराने की वजह से इमामुल अंबिया के दंदाने मुबारक से ऐसा नूर चमका कि जिससे पूरा घर रोशन हो गया और मुझे मेरी सुई मिल गई। यही वजह कि हजरत आयशा फरमाया करती थी कि मेरा जो सूरज है वो दुनिया के सूरज से बेहतर है, इसलिए कि मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। वो हस्ती, वो नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ले आए,
जिस नबी के मदीने में चलने की वजह से मदीने के गली कूचे खुशबू से मुअत्तर हो जाया करते थे, जिस नबी का पसीना दुनिया की किसी खुशबू से भी आला और अफा था। हजरत उम्मे सलीम फरमाती हैं कि इमामुल अंबिया अपने दिन के वक्त आराम के लिए कभी कभी मेरे घर में तशरीफ लाते और दोपहर के वक्त आराम करते। इमामुल अंबिया सख्त गर्मी में जब आराम करते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे मुबारक से पसीने के छोटे छोटे कतरे मोतियों की तरह बहा करते थे और मैं उम्मे सुलैम उन कतरों को एक शीशी के अंदर बंद कर दिया करती थी, जमा कर लिया करती थी और फिर मैं उन कतरों को अपनी खुशबू के अंदर मिक्स करके मदीने के बाजार में जाकर ये खुशबू बेचा करती थी। और औरतें पूछती थी कि उम्मे सुलैम ये खुशबू तूने कहां से लाई है, ऐसी खुशबू तो पूरे मदीने में नहीं मिलती। मैं उन्हें कहती थी कि ये खुशबू नहीं है, ये इमामुल अंबिया अल्लाह के महबूब का पसीना मुबारक है। हुजूर वो हस्ती, वो नबी दुनिया में आज 12 रबीउल अव्वल कल तशरीफ लाए कि जिनके आने की वजह से सारा जमाना जो कि हुजूर का मुंतजिर था। रवायात में लिखा है कि जिस साल इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उस साल अल्लाह जल्ला शानहू ने इतनी बारिशें बरसाई और मक्के के लोगों के लिए, अरब के लोगों के लिए इतनी फसल और पैदावार हुई जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। और रवायात में यह भी आता है कि जिस साल इमामुल अंबिया पैदा हुए अल्लाह जल्ला शानहू ने ऐलान कर दिया कि इस वक्त जमीन पर जितनी भी औरतें हामिला हैं, जिन औरतों के पेटों में बच्चे हैं, वो सारी की सारी औरतें इस साल मेरे नबी के आने की बरकत से बेटियां नहीं बेटे जनेंगी। उस साल तमाम औरतों ने बेटे जने, सारी दुनिया के अंदर जितनी भी औरतें हामिला थी। ये हुजूर का प्रोटोकॉल था। 12 रबीउल अव्वल इमामुल अंबिया दुनिया में आए। हुजूर अलैहिस्सलाम का दुनिया में आने का अंदाज ये था। हजरत आमीना फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए, हुजूर पैदा हो गए, दुनिया में तशरीफ ले आए, तो मैंने देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चारों उंगलियां बंद थी, एक उंगली खुली हुई थी जो आसमान की तरफ उठी हुई थी। और कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील लंबा सजदा किया। क्या किया? लंबा सजदा किया, जो इस बात का दर्श था कि मेरी उम्मत के लोगों, मैं दुनिया में आ रहा हूं और तुम्हारे लिए अल्लाह के हुजूर से सजदे लेकर आ रहा हूं कि जिंदगी में जब भी कभी तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएं, जिंदगी में जब भी कभी तुम्हारी परेशानियां लंबी हो जाएं, तुम्हारी मुसीबतें लंबी हो जाएं, अल्लाह के हुजूर अपने सजदे लंबे कर देना, वो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को छोटा कर देगा। इमामुल अंबिया दुनिया में आए और सजदा किया। ये इस बात की दलील थी कि मेरी उम्मत के लोगों, नमाजें ला रहा हूं, सजदे ला रहा हूं, और वही काम जो हुजूर ने किया और दुनिया से रिहलत फरमाते हुए भी हुजूर ने अपनी उम्मत के लोगों को नमाज की तरगीब दी। और आज हम लोग नमाज के करीब भी नहीं भटकते। अल्लाह पाक हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की अमली अल्लाह हमें मोहब्बत नसीब फरमाए, और मोहब्बत के साथ साथ हमें हुजूर की इताअत कामिल नसीब फरमा दे अल्लाह।